So today we will start from sampling theory. What is a sample? Sample से पहले आती है population. What is a population? So the group of individual under study, group of individuals, the group of individuals under study. हमने पॉपुलेशन की बात क्यों करनी है? क्योंकि पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को हमने जज करना है, उसके बारे में हमने कोई अपना डिसीजन देना है. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज पॉपुलेशन. So the group of individuals, right, which have more than one characteristic and which is under study is called population or universe. So in other words, in statistics, basically in statistics, population is the aggregate. It is the aggregate of objects. It is the aggregate of objects animated or inanimated. Animate or inanimate. Under study is called population. Now the question is, what is animate and inanimate? Animate और inanimate में क्या difference है? Animate का मतलब है कि हम दो तरह के ग्रुप्स को स्टडी कर सकते हैं. हम क्वालिटेटिव डाटा भी देख सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव डाटा के लिए भी स्टैटिस्टिक्स में स्टडी कर सकते हैं. सो हमारा क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. अब क्वांटिटेटिव में मार्क्स हो गए, हाइट हो गए, वेट हो गया, एज हो गया, हाइट, वेट, एज, राइट. तो ये सारे के सारे जो है दीज कम्स अंडर क्वांटिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव में इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आ गया, ठीक है. कोई ब्यूटी का पैरामीटर है, अगर आप वो रखना चाहते हैं वो आ सकता है. सो दिस इज द क्वालिटेटिव डाटा. सो देयरफॉर बोथ काइंड ऑफ डाटा कम्स अंडर दिस स्टडी. सो नेक्स्ट इज द सैंपल. दिस इज अ सैंपल. Next is sample. What is sample? Then we will come to their examples. What are the example of population and what are the examples of sample? So sample जो है, that is a finite subset of population. A finite subset of statistical individuals in a population is called a sample. अब sample जो population है, that may be finite, that may be infinite. तो उसमें से जो एक finite subset है, a finite subset of statistical individuals in a population is called sampling. No, is called sample. Is called sample, right? And the number of individuals in a sample size, that is called a sample size. Number of individuals in a sample is called sample size. एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज आप एंटिटीज ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल साइज, राइट. अब फॉर एग्जांपल वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ population and sample. Suppose we want to have an idea of the average per capita income of the people in India. ठीक है जी. Suppose we have to, अब पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनका हमने एवरेज पर कैपिटा इनकम देखनी है. तो जो एवरेज, तो पूरी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है
वो पूरी पॉपुलेशन को डिनोट करेगी, ठीक है। अब उसको पूरी को स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, पूरी कंट्री को। तो क्या करेंगे हम, रीजन वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें से कुछ हम उसका फाइनाइट सबसेट उठाएंगे। वो जो फाइनाइट सबसेट है वो किसका काम करेगा, सैंपल का, राइट। So when if the population is infinite, the total complete enumeration is not possible, right? Because also if the if the units are destroyed in the course of inspection, अब आपको इंस्पेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, हमने किसी चीज फील्ड स्टडी करनी है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो units हैं that may be destroyed in the course of inspection. For example, inspection of crackers, explosive materials, etc. आप उनके एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है जी। 100% inspection, though possible, is not at all desirable. But even if the population is finite, or the inspection is not destructive, 100% inspection is not taken into records because of the multiplicity of causes, vis-a-vis administrative and financial implications, time factor. So in this case, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को इन्यूमरेट करना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारे एरर्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसमें बहुत लेबर चाहिए, टाइम फैक्टर है, फाइनेंस चाहिए, किसी कोई भी सर्वे हमने करना है, तो इट मीन्स हम वहां पे पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करेंगे, वी विल टेक द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग। सो जो प्रोसीजर है सैंपल्स लेने का, डाटा कलेक्शन का, उसमें से उसके ऊपर उसको फिर उसके ऊपर पैरा कुछ भी हमने अगर अप्लाई करना है, तो दैट टोटल प्रोसीजर इज कॉल्ड अ सैंपलिंग, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सैंपल क्यों लेना है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमने डिस्कस करना है, if you want to discuss the characteristics of the population, right, then we will take the samples from the population. So these sample units will describe the characteristics of the population. For example, on examining the sample of a particular stuff, we arrive at the decision of purchasing or rejecting that stuff. अब suppose we have gone to the market, हमने कोई एक स्टफ खरीदना है, हमने कपड़ा खरीदना है, तो अब हम जो पूरा उनका कंप्लीट जो एक पूरा उसमें उन्होंने रैप किया होता है वो पूरा नहीं खोलते, आप वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, आप उसका टेक्सचर चेक करते हैं, स्टफ चेक करते हैं, देन यू विल से भी हाँ दिस इज ओके। आप जिस भी चीज के लिए उसको परचेज करना चाह रहे हैं, आपने अपने दिमाग में पैरामीटर बिठाए हैं, भी वो उसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, वो क्वालिटी में ऐसा होना चाहिए। सो दीज आर काइंड ऑफ पैरामीटर्स जो आप पूरे के पूरे, सपोज करो आपने कर्टन ही लगाने हैं पूरे रूम में, पूरे घर में, ठीक है, और कर्टन लगा सपोज करिए आपने एक ही तरह के कर्टन लगाने हैं, तो आप अपने मन में पैरामीटर सेट करके जा रहे हैं कि वो ज्यादा सिल्की ना हो, दिस इज वन काइंड ऑफ पैरामीटर, ठीक है, उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो लुक है वो ऐसी होनी चाहिए। सो ये जो पैरामीटर्स हैं, आप पूरे घर के जो सारे कर्टन्स हैं उसकी जो है उसको सोच के जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में गए हैं और आपने वो उसके लिए कर्टन के लिए क्लोथ जो आप परचेज कर रहे हैं, उसको पूरे का पूरा नहीं वो खुलवाएंगे, जो कंप्लीट उसके उनके पास पड़ा होगा, आप थोड़ा सा वो भी आपको सैंपल ही दिखाएंगे, वो जो थोड़ा आप चेक करने के लिए देख लेंगे, सो दैट इज नथिंग बट द सैंपल, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है और वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्वालिटीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द पॉपुलेशन we need sampling, right? So there may be definitely, जब हम बेटा अब आपके पास 100 की बात करनी है, लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ 20 ही उठा रहे हैं तो सैम्पलिंग में एरर की भी पॉसिबिलिटी होती है, सो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर।
So another example of sampling in quite in day-to-day life is whatever. So suppose we want to assess the quality of a sugar and wheat or any other commodity, then by taking handful of it from the bag, एक बैग में से जब आप एक थोड़ा सा हाथ में निकाल के देखेंगे, then it decide whether you want to purchase it or not. And moreover, हाउसहोल्ड जो टास्क है या अगर किचन में है, then what we normally test the cooked products to find if they are properly cooked and it contains the proper quantity of salt or not. तो पूरी अगर आप पूरा के पूरे एक आपके पास बाउल में कुछ पड़ा हुआ है आपके पास, आपने चेक करना है कि whether the salt is good, quantity of the salt is fine or not, perfect or not. So you will not try to eat all the vegetables. You will just take a spoon and then you will check whether the quantity is well or not. So this is our concept of population, sample and sample. The process of doing sample, taking the sample to put the analysis of the samples, and that is called a sampling. So one more thing I want to share. So this is some of the more elaborate यहाँ से करेंगे हम population और sample को. Just see population versus sample. What is a population and what is sample? अब population को की जो measurable quality है उसको कहते हैं parameter, right? The measurable quality of sample is called a statistic. So population is a complete set. So population is a complete set. The sample is a subset of the population. Reports are a true representation of opinion. Reports have a margin of error and confidence interval. अब population पूरा population लेते हैं तो बेटा आपको एग्जैक्ट वहां से बिल्कुल 100% एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप सैंपल्स लेते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां कोई ना कोई एरर अगर हो. इट कंटेन्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप. कोई भी किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मैं इनकम की बात कर रही हूँ, मैंने वो सारे लिए जिनकी इनकम इससे ऊपर है, तो वो एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन का हर एक पॉइंट उसके अंदर आएगा. एंड दिस इज अ सबसेट दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन, राइट? So the concept of population versus sample is an important one for every researcher to comprehend. Understanding the difference between a given population and a sample is easy. So what we have to remember that the fundamental law of statistics, a sample is always a smaller group within the population. आपने जो सैंपल लेना है that will ultimately come from the population से बाहर नहीं होगा, right? सो इन मार्केट एंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको पहले बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की जो एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की हर फील्ड में है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट रिसर्च, ठीक है जी. सो so what is a population in market research? Population research is a complete set of elements that possesses a standard parameter between them. अब यहाँ पे standard parameter, अब कोई जो भी population की बात करेंगे, अब मेरी पॉपुलेशन नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है जी, नॉर्मल पॉपुलेशन हो सकती है. नॉर्मल पॉपुलेशन के आपको पता है दो पैरामीटर्स होते हैं, द वन इज म्यू, द अदर इज सिग्मा, राइट? So sample is a smaller part of the whole, that is a subset of the entire population. It is representative of the population in a study. ये represent पूरी population को जो represent करता है वो कौन है? वो sample है, right? When conducting surveys, a sample is the members of the population who are invited to participate in the survey. अब कोई सर्वे करना है आपने, लाइक ठीक है जी, सर्वे करना है. सर्वे सपोज करो हमारे आपके घर के पास कोई ब्रिज बना है, ठीक है, अंडर ब्रिज बना है या ओवर ब्रिज बना है, तो हमने पूरा जलंधर में वो बना है, लेकिन हमने एक लोकेलिटी वहां से 2-3 लोकेलिटीज जो उसके नियरेस्ट पड़ती हैं, हमने उनका सर्वे किया कि क्या उनको ये जो ब्रिज बना है ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज, क्या ये आपको ठीक लगा है. उसमें हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस देंगे उनको, तो वहां से हम सर्वे कर सकते हैं. तो इसमें मैंने सारी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं किया, उसमें से सिर्फ मैंने कुछ यूनिट्स लिए पॉपुलेशन के सर्वे के लिए. सो दे आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे. Hence, a sample is a subgroup or subset within the
population. The sample can be studied to investigate the, very important line, the sample can be studied to investigate the characteristics or the behavior of the entire population data. कोई आपको पूछे सैंपल क्यों लेना है, why we will take the sample? So पहली बात, पूरी population की enumeration it is not possible. So what we will do, we will take sample and that sample can be used to investigate the characteristics or behavior of the entire population, right? So this is the topic regarding the population and sample. Now come under, we will do types of sampling. Next is the type of sampling. So what to do? Types of sampling में क्या करना है, हमने टाइप्स पढ़नी है. उसमें जो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है रैंडम सैम्पलिंग, which is under study, जो हमने पढ़नी है, that is random sampling. So what random sampling says? So when a sampling of that kind in which every individual has an equal chance to be involved, ठीक है जी, हर जो एक यूनिट है सैंपल का उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है. So you will write सैम्पलिंग में random sampling. Random sampling. So random sample is one. सैम्पलिंग बाद में होती है, पहले सैंपल लिया जाता है, ठीक है. रैंडम सैंपल इज वन, यू विल राइट द डेफिनेशन. A random sample is one in which each unit has an equal, in which each unit किसका, of population, has an equal chance of being included in it. Equal chance of being included in it, right? For example, suppose we take a sample of size n from a population, finite population of size n. हमने population size रखा capital N, ठीक है जी. sample size लिया small n, right? Then there are how many possible samples? Then number of possible samples. This is NCN. इसका मतलब क्या होता है? सपोज अगर मैं 5 ये लेती हूँ, सपोज आई हैव दिस 5 एंड दिस इज 2, तो इसका मतलब टोटल 5 है और आपने 2 एट ए टाइम लेके चलने हैं, तो ये कितने हो गए? दिस इज 5C2. So this comes out to be 5 into 4, 1 into 2 factorial, that is 10. फॉर्मूला होता है NCN का, कैपिटल NCN का फॉर्मूला फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल. हाँ जी बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल NCN? ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ऊपर कैपिटल एन आएगा मैम, नीचे कैपिटल एन. हाँ राइट, कैपिटल एन अपॉन एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस इनटू स्मॉल एन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल n आगे इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन फैक्टोरियल. स्मॉल n. तो अगर मैं ये ले रही हूँ, सो लेट्स चेक, दिस इज फैक्टोरियल 5, दिस इज फैक्टोरियल 2 एंड इनटू फैक्टोरियल
3, तो उस हिसाब से 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। वैसे आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, दिस इज 1 इंटू 2, दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3, सो व्हाट इज द आंसर? that comes out to be 10, that comes out to be 10, ठीक है जी। सो इसका मतलब अगर हम इस तरह से लेते हैं तो हमारे जो पॉसिबल सैंपल्स हैं वो कितने आएंगे? 10 आएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट आगे है अब इसी को ही हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। सो देयरफॉर इन अदर वर्ड्स, रैंडम सैंपल क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है? अब पहले आपने सैंपल लिया। रैंडम सैंपल क्या था? रैंडम सैंपल इज वन इन विच एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इन इट। नाउ अब हम रैंडम सैंपलिंग की अगर बात करेंगे, so what is the definition? A sampling technique in which each of the ancient sample, a sampling technique in which each of the ancient samples has an equal chance of being selected is known as random sampling, ठीक है जी। and the sample obtained by this technique, and the sample obtained by this technique is called random sample, is called random sample. This is sample, right? Clear? So we will come to the example of this kind of sampling. दो तरह की इसमें sampling होती है, random sampling with replacement and without replacement। दो तरह की sampling की बात करेंगे अब हम यहाँ। Sample with replacement, number 1, a random sampling without a replacement, ठीक है जी। Suppose we have population size is 5, population size क्या लिखा था? random sampling without a replacement. Suppose we have random, हमारे पास population size 5 है। Capital N always denotes the size of the population and the sample size is 2, ठीक है जी। और entries क्या है population की? Population units are simple लेते हैं, simple 1 2 4 6 8 10। सपोज करो हमने ये लिए 2 4 6 8 एंड 10, राइट? 5 हो गया एंट्रीज। अब मुझे सैंपल लेना है 2 एट ए टाइम। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो बाद में देखेंगे, अभी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में कहाँ फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट,
इसका मतलब जब मैंने 2 उठा लिया तो 2 मैंने दोबारा वापस नहीं रखा, 2 बाहर निकल गया। अब 2 के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 6 का, 2 के साथ 8 का और 2 के साथ 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है जी, 2 बाहर आ गया और 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब 4 के साथ 2 का नहीं बनेगा क्योंकि हमने 2 को रिप्लेस नहीं किया, अब वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब 4 की बात करेंगे। 4 6 के साथ, 4 8 के साथ, 4 10 के साथ। ठीक है जी, अब 4 भी खत्म हो गया। अब आगे 6 की टर्न, 6 8 and 6 10, 6 भी ओवर, then the last possibility is 8 10। ठीक है जी, 10 8 नहीं होगा। 10 के साथ अब ये भी खत्म हो गया, अकेला 10 रह गया। 10 के साथ किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि ये सारे निकल चुके हैं इस ग्रुप में से, तो ओनली 10 इज लेफ्ट और हमें टेकन 2 एट ए टाइम बनाना है। सो हाउ मेनी सैंपल्स? सो सैंपल्स टेकन, वो आप यहाँ लिखेंगे सैंपल्स टेकन। 2 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो number of samples taken 2 at a time। कितने हुए? 10। कैसे बने? 5 0 3, यानी in general NCN। So when we will do the sampling without replacement, then the number of possible samples is, so we may write, when we do sampling without replacement from a population of finite size, then number of possible samples are what? NC। I hope the point is clear to all of you, Yes, right?